नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। टुडे विल डिस्कस हाउ जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग आर अप्लाइड इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। And yes, if you have not subscribed to my channel yet, please do like this video and subscribe to my channel for many such videos in different playlists. So let's start. Remote Sensing and GIS Part 6, Applications of Remote Sensing and GIS in Solid Waste Management. So these are 3 maps prepared by me, and I'll discuss these maps later, one by one. First, applications of remote sensing and GIS in solid waste management. So why and how is GIS and remote sensing useful in this case? So remote sensing and GIS is used in the site selection for landfill based on certain criteria, which is 1. Distance from waste generation center. 2. Distance from major roads. 3. Slope of land. 4. Distance from human settlements. 5. Distance to surface water. 6. Distance to groundwater areas, which is areas which have higher water table. And 7. Permeability of soil. So at least these many criteria are used in the site selection for landfill. So what happens? The GIS takes remote sensing takes pictures with the use of remote sensing technique. You take pictures of different sites within a city and around that city, and then you place those images on a GIS map using a GIS software. So, and the entire city and surrounding areas are mapped to see which locations fulfill these criteria, and based on that, a site is selected. So, distance from waste generation center. A landfill site should not be too far away from a waste generation center, so that waste from waste generation center can be easily transported to the landfill site. Distance from major road. Landfill sites should be near a major road because the dump trucks are heavy and they need major roads. The dump trucks cannot go in small and congested roads. So the landfill site should be near a major road so that the dump trucks can come and go through those roads. Slope of land. A landfill site should not be on a really steep slope of land, because then there would be a problem in designing the landfill site. So the slope of land for the landfill site has to be optimum. Distance from human settlements. Clearly, if a landfill site also gives out methane, hydrogen sulfide, and other noxious gases, and that could be a problem for human settlements. So it should not be near human settlement. Distances to surface water. Now the landfill site, if rain falls on the landfill site, there could be acidic discharges. There could be reactions with rainwater to the garbage on the landfill site, and acidic water may be emitted from the landfill site to the nearby surface water. So the landfill site should never be near surface water, because there's always the danger of the landfill site contaminating that surface water. So it should not be near the surface water. Distance to groundwater. Now the landfill site should be at least 1.8 meter deep, at least 1.8 meter deep. So any landfill site, any groundwater areas where water table is high, is likely to be contaminated by the landfill site. So landfill site should not be near areas where groundwater table is high. Permeability of soil. Landfill site should never be on a permeable soil, because otherwise the leachate from the landfill site which will permeate and percolate to the groundwater. So that is also a no-no. इसी बात को हिंदी में समझा देती हूँ कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस जो है वो लैंडफिल साइट के साइट सिलेक्शन के लिए काम में आता है। जैसे एक शहर का पूरा नक्शा होता है, तो जीआईएस के द्वारा हम उस शहर के पूरे नक्शे को नक्शा दिखाते हैं, शहर के आसपास का एरिया, और फिर हम ऐसी साइट सेलेक्ट करते हैं जो कि वेस्ट जनरेशन सेंटर के पास हो, ताकि जो वेस्ट है वो वेस्ट जनरेशन सेंटर से जल्दी से लैंडफिल साइट तक पहुंच सके। वो एक मेजर रोड के आसपास हो, क्योंकि जो डंप ट्रक होता है वो बहुत भारी और बहुत बड़ा होता है। पतली सड़कों पे वो नहीं चल सकता है क्योंकि उसके पहिए बहुत बड़े होते हैं, बहुत भारी होते हैं।
और पतली सड़कें वो खराब हो जाएंगी साल भर में ही अगर उस पर डंप ट्रक चलेंगे। तो मेजर रोड जो पक्की सड़कें होती हैं, जो बहुत अच्छी क्वालिटी से की बनी होती हैं, उन पे वो ट्रक्स चल पाते हैं। तो लैंडफिल साइट को ऐसी जगह होना चाहिए जहां कोई मेजर रोड एकदम आसपास हो, ताकि रोड डंप ट्रक उस मेजर रोड से चलता हुआ लैंडफिल साइट तक आसानी से पहुंच जाए। स्लोप ऑफ लैंड, अब लैंडफिल साइट किसी पहाड़ पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर सारा कचरा नीचे आने लगेगा ना। ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट्स, किसी आबादी के आसपास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैंडफिल साइट से हमेशा ही मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और दूसरी बदबूदार गैसेस निकलती हैं। तो ऐसे में जो आसपास कोई बस्ती बसी होगी तो उनको दिक्कत होगी, इसलिए उसके आसपास भी नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस वाटर, अब लैंडफिल साइट पर जब बारिश का पानी गिरता है तो वो बारिश का पानी वो कूड़े के साथ घुल के और एसिडिक वाटर रिलीज करता है ना। तो वो अगर सरफेस वाटर के पास होगा तो वो एसिडिक वाटर सरफेस वाटर में घुलेगा। तो इसलिए ये एसिडिक वाटर या उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैंडफिल साइट से घुल घुल के सरफेस वाटर में जाएंगे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सरफेस वाटर के पास भी लैंडफिल साइट कभी नहीं होना चाहिए। और ग्राउंड वाटर में भी, अगर ग्राउंड वाटर का वाटर टेबल कहीं आसपास हाई है या लैंडफिल साइट के पास ही एकदम ग्राउंड वाटर का वाटर टेबल हाई है, तो लैंडफिल साइट को तो 1.8 मीटर तक खुदता है, कम से कम 1.8 मीटर खड्डा किया जाता है कम से कम। तो वाटर टेबल अगर हाई रहेगा तो लैंडफिल साइट का लीचेट सीधे जाके वाटर टेबल में मिलेगा। तो ये तो बहुत डेंजरस है कि पूरा ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो गया उस एरिया का, और सब लोग वही ग्राउंड वाटर पी रहे हैं। तो ये कभी नहीं होना चाहिए। ग्राउंड वाटर एरिया से भी लैंडफिल साइट को दूरी पे होना चाहिए। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि कभी भी रेतीली जमीन पे लैंडफिल साइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुरंत वो लैंडफिल साइट का लीचेट ट्रिकल डाउन होकर तुरंत वाटर टेबल में मिल जाएगा। हमेशा क्लेई जमीन पे होना चाहिए, क्योंकि जो केवाल मिट्टी होती है, जो क्लेई मिट्टी होती है, वो इतनी सख्त होती है कि उसके नीचे से पानी ट्रिकल डाउन होके रिस्क के ग्राउंड वाटर तक जाना आसान नहीं होता है। तो वैसी जगहों पर ही लैंडफिल साइट बनानी चाहिए। लैंडफिल साइट शुड ऑलवेज बी एट अ लो परमेबिलिटी साइट, not at a high permeability site, because high permeable soils like gravel and sand, they allow water to flow and pass through them, and that should not be the case in a landfill site. ठीक है। अगला, अगली स्लाइड, एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन वेस्ट मैनेजमेंट। अब साइट सिलेक्शन किन किन क्राइटेरिया पे होता है ये तो मैंने आपको बता दी, किस स्टेजेस पे होता है ये जरा देख लें। So, in the first stage of site selection process, sites with legal restrictions such as sensitive areas or airports or high permeability or those near sources of water or inaccessible to transportation routes can be screened out from the selection process. In the later phase, the remaining sites are ranked in the order of preference based on the criteria listed above. Multi-criteria decision-making tool is applied in site selection. Multi-criteria, when sometimes some decisions are made based on just one criteria, but when there are multiple criteria, like in this case for the site selection process, there are multiple criteria that are taken into account for selecting a site for landfilling. So multi-criteria decision making is a tool for such processes where the decision is to be made based on multiple criteria. Okay. Sensitivity analysis, again, each criteria is differently sensitive, like one criteria can be more important than the other. So sensitivity analysis is performed if needed to assess how the weight assigned to each criteria affects the outcome. So maybe permeability of soil might be a more important criteria than, say, slope of land. Just an example. I'm not an expert at this, but just an example. So likewise, a definite weight is assigned to each criteria, and then the sensitivity analysis is performed to show that, okay, if this criteria is given more weight, this would be the outcome. This site would be better suited. If the other criteria is given more weight, maybe this other site is better suited for a landfill. So likewise, sensitivity analysis. 6. Not just landfill sites, but it could also be used to decide locations for transfer stations and waste collection and disposal routes. Sorry. And timings for garbage collection and dump trucks. In this case, a circulation or transportation map is used, and not just for deciding the selection of landfill site, but if there has to be a new transfer station is to come up. So in that situation, also to decide what the location of the new transfer station could be, the remote sensing and GIS could be used in a similar manner. Also, what happens, there are traffic levels that are high at certain times of the day and traffic levels low at certain times of the day. So what would be the best time for a garbage truck to come and collect garbage
or come and collect garbage from the transfer station and then dump it onto the landfill site. The timings of those trucks can also be decided using remote sensing and GIS, just by mapping the creating a transportation map and mapping the timings of different or timings of high and low traffic on that map, and then you can decide when is a good time for the performance of garbage trucks. अब इसी को हिंदी में समझा देती हूँ. तो पहला साइट सिलेक्शन आपने कर लिया, ठीक है. साइट सिलेक्शन के अलग अलग स्टेजेस होते हैं. तो पहले जो स्टेज होता है वो एलिमिनेशन प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ साइट सिलेक्शन में. उसमें जो लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिन साइट्स पे, कि इन साइट्स पे तो आप जो है लैंडफिल बना ही नहीं सकते, वो कौन सी साइट्स होती हैं? वो साइट्स होती हैं सेंसिटिव एरियाज. कोई भी ऐसा जंगल जिसमें रेयर, थ्रेटन्ड या एंडेंजर्ड स्पीशीज रहती हैं, वहां पे लैंडफिल साइट नहीं होता, क्योंकि लैंडफिल साइट से पोल्यूशन का खतरा होता है, वाटर के कंटेमिनेशन का, एयर के कंटेमिनेशन का खतरा होता है. और जो जहाँ पे ऑलरेडी रेयर और थ्रेटन्ड और एंडेंजर्ड स्पीशीज रह रही हैं, उनको हम ये खतरा मूल नहीं ले सकती. तो वो जो सेंसिटिव एरियाज हैं, वहाँ हैबिटेट वगैरह है, वहां पे हम लैंडफिल साइट नहीं बना सकते. तो वो लीगल रिस्ट्रिक्शन होता है उनको, तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है. इसके अलावा एयरपोर्ट जो होता है वो हमेशा वीआईपी एरिया होता है, और एयरपोर्ट के पास लैंडफिल नहीं बनाना चाहिए. उसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि लैंडफिल पे गिद्ध, चील, ये सब चिड़िया मंडराती हैं, और एयरपोर्ट के पास अगर जब चिड़िया मंडराती हैं तो एयरपोर्ट और चिड़िया के टकराव से प्लेन क्रैश का बहुत बड़ा खतरा होता है, और ऐसे बहुत प्लेन क्रैशेस हुए भी हैं. इसलिए लैंडफिल साइट कभी भी एयरपोर्ट के पास नहीं बनाया जाता है इन कारणों से. तो वो उनको भी लीगल रिस्ट्रिक्शन होता है, तो वो साइट्स को भी एलिमिनेट कर लिया जाता है. पहला होता है एलिमिनेशन प्रोसेस. हर साइट जहां लैंडफिल नहीं बन सकता उसको एलिमिनेट करो, उसको नक्शे से हटाओ, ठीक है. या फिर उसको नक्शे पे मार्क करो कि नो नो नो, अलग अलग साइट को नो नो मार्क करो, ठीक है. हाई परमेबिलिटी साइट्स, जहाँ की जो सॉइल है वो बहुत परमेबल है और बहुत आसानी से वो जो है लीचेट वो पर्कुलेट हो सकता है ग्राउंड वाटर में, वो भी लीगल रिस्ट्रिक्शन में आती है. उसको भी कानूनी तौर से मना किया गया है कि लैंडफिल वहां ना बनाए. तो वैसे सब साइट्स को, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन जहाँ रूट से इनएक्सेसिबल है, जहाँ कोई मेजर रोड नहीं है, इन सब साइट्स को पहले तो स्क्रीन आउट या एलिमिनेट कर लेते. ये पहला स्टेज हुआ. दूसरा में रैंकिंग होता है कि अब जो साइट्स बच गई हैं उनको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में रैंक करें कि ठीक है, ये सब साइट्स पे लैंडफिल बन सकता है, पर इनमें से कौन सा प्रेफर्ड साइट है, कौन सा ज्यादा प्रेफर्ड है, कौन सा उससे कम प्रेफर्ड है, कौन सा उससे कम प्रेफर्ड है. और मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग टूल अप्लाई किया जाता है, क्योंकि एक क्राइटेरिया तो है नहीं लैंडफिल साइट सिलेक्शन का, मल्टीपल क्राइटेरिया है, इसलिए मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा सेंसिटिविटी एनालिसिस भी इस्तेमाल किया जाता है कि हमने अगर किसी साइट को सबसे ज्यादा प्रेफर किया है तो किस बेसिस पे. तो जो भी क्राइटेरिया है 1 2 3 4 5 6 7 क्राइटेरिया है जो लैंडफिल साइट सिलेक्शन का, उनमें अलग अलग क्राइटेरिया को अलग अलग वेट दिया गया है. तो अगर इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को ज्यादा वेट देंगे तो कौन सा बेस्ट साइट निकल के आएगा, या दूसरे किसी क्राइटेरिया को ज्यादा वेट देंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो कौन सा साइट बेस्ट निकल के आएगा लैंडफिल के बनाने के लिए. तो इसी तरह से सेंसिटिविटी एनालिसिस कर ली जाती है. इसके अलावा ये तो हो गया लैंडफिल साइट सिलेक्शन का. पर अगर कोई नया ट्रांसफर स्टेशन भी आपको बनाना है ना, तो उसमें भी बहुत उपयोगी है कि अगर नया ट्रांसफर स्टेशन बनाना है तो इन्हीं सारे क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके कौन सा जगह सबसे अनुकूल होगा नया ट्रांसफर स्टेशन बनाने के लिए, वो भी हम रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की मदद से बना सकते हैं. इसके अलावा डिस्पोजल रूट्स की रिमोट की कभी कभी ट्रैफिक सुबह में ज्यादा होता है, कभी दोपहर में बीच में बढ़ जाता है, और शाम को ट्रैफिक हमेशा ज्यादा होता है. तो कौन सा सही समय होगा जिस वक्त हम अपने डंप ट्रक्स को शहर में घुमा के कूड़ा कलेक्ट कर सकते हैं, और फिर ट्रांसफर स्टेशन से बड़े डंप ट्रक्स में भर के उसी कूड़े को लैंडफिल साइट तक ला सकते हैं. उसकी टाइमिंग कौन सी परफेक्ट होगी, ये भी रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की मदद से हम कर सकते हैं. क्योंकि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का फायदा यह होता है कि सब कुछ नक्शे पे होता है. तो एक नक्शे पे आप उस शहर का ट्रांसपोर्टेशन रूट बना लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन रूट क्या है अलग अलग, और फिर उस रूट पे टाइमिंग कि किस टाइम पे ट्रैफिक ज्यादा होता है और किस टाइम पे कम, ये भी उस रूट पे, उस नक्शे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दीजिए. और फाइनल आपको एक नक्शा मिलेगा कि इस टाइम पे इस गली में इस मेजर रूट पे जो है ट्रैफिक ज्यादा होता है, इस पे कम होता है. और फिर आप उसको देख के डिसाइड कर सकते हैं कि कूड़ा इकट्ठा करने का टाइम, साथ में लैंडफिल साइट पे कूड़ा डिस्पोज करने का टाइम बेस्ट क्या होगा. तो ये सभी क्राइटेरिया, ये सभी कुछ आप रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की मदद से कर सकते हैं. तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो इस्तेमाल है रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में धड़ल्ले से हो रहा है. और अब ये नक्शे जो मैंने बनाए थे, जो मैंने आपको कहा था कि मैं एक्सप्लेन करूंगी. So this is a map for the city of Manhattan, Kansas, because I lived in that city, so I always make maps
for that city. So the green area, the light green area is the city of Manhattan, and the brownish area is the county, or the county of Manhattan. County means district in India. The dark green areas, these are the parks in the city of Manhattan. This is the water area around the city of Manhattan. And these are the rivers around the city of Manhattan. So this is an interesting map. It's not a map made specifically for solid waste management, but you can see that these are the parks. Parks are the places where children play. Parks are the places where there are human settlements. So clearly, if you want to select a landfill site, you cannot do it around the parks. If you want to select the landfill site, you cannot do it near the rivers. And also, these are areas with high slope. And the DEM, digital elevation model, or the representation of the land surface elevation with respect to a reference. So these are areas with high elevation, the blue areas, and these are areas with low elevation. So elevation, the nearness of human settlement, the nearness of water bodies, everything is on this map. And based on this map, you can think of some sites for landfill disposal. Again, this area has lots of parks. That means lots of human settlement. So clearly, you cannot have a landfill site here. Maybe you can have a landfill site somewhere here around this areas. So ये एक मैप है. ये लैंडफिल साइट सिलेक्शन के लिए मैप नहीं है, पर ये एक ज्योग्राफिक मैप है. तो मैं आपको इसके द्वारा समझाना चाहती हूँ कि किस तरह से लैंडफिल साइट का सिलेक्शन इस मैप के द्वारा भी किया जा सकता है. ये जो हल्के हरे रंग का है, ये सिटी ऑफ मैनहट्टन है कैंसस में. मैं पहले वहां रहती थी, इसलिए मैंने काफी नक्शे वहां के बनाए थे, तो मैं उसी को एज एन एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे पास जीआईएस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो भारत का कोई नक्शा मैंने नहीं बनाया. ठीक है, तो ये हल्के हरे रंग का शहर है, उसके आसपास ये जिला है बड़ा. ठीक है, ये जो नीले रंग का आपको दिख रहा है, ये हाई एलिवेशन है, और जो ये हल्के भूरे रंग का है, ये लो एलिवेशन साइट है. ये जो गहरे हरे रंग का आपको ये पॉलीगॉन्स दिख रहे हैं, ये पार्क्स हैं. पार्क्स हमेशा वही होते हैं जहां आबादी ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चों के खेलने की जगह होती है. तो इस एरिया में छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे पार्क्स, क्लियरली यहाँ आबादी ज्यादा है, तो यहाँ तो कोई लैंडफिल साइट नहीं बन सकता. यहाँ से पानी है, तो यहाँ भी लैंडफिल साइट नहीं बन सकता है. ये एरिया शायद दिख रहा है ऐसा, जहाँ की आसपास कोई पार्क नहीं है, कोई पानी का स्रोत नहीं है, एलिवेशन भी ठीक है, तो शायद यहाँ पे लैंडफिल साइट बन सकती है. तो ऐसे एलिवेशन को देखते हुए, आसपास ह्यूमन सेटलमेंट्स को देखते हुए, पानी के सोर्सेस को देखते हुए, आप डिसाइड कर सकते हैं कि लैंडफिल साइट कहाँ बन सकती है. ठीक है, अब ये दो अलग अलग मैप्स हैं. तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन का मैप है, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लैंडफिल साइट में. जैसे यहाँ पे मेजर रोड्स हैं, ठीक है, तो मैंने कहा था यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी कम है और मेजर रोड भी यहाँ आसपास है, तो शायद यहाँ लैंडफिल साइट बन सकती है, या शायद इस जगह लैंडफिल साइट बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे मेजर रोड है लाल रंग की. तो ट्रांसपोर्टेशन मैप भी इंपॉर्टेंट होता है लैंडफिल साइट में. अब ये एक मैप है, सॉरी, जो लैंडफिल साइट सिलेक्शन के लिए नहीं है, पर सूटेबिलिटी फॉर लिविंग के लिए है. पर मैं ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रही हूँ, हालांकि बहुत सटीक एग्जाम्पल नहीं है ये. अब ये सिटी शहर का मैप है, यहाँ पे सब सड़कें हैं, यहाँ पे हरे हरे पार्क्स हैं, यहाँ मेजर रोड्स हैं. तो कहाँ पे पार्क हैं, कहाँ सड़कें हैं, कहाँ मेजर रोड है, कहाँ बाइक लेन से, ये हरे रंग की ये बाइक लेन से जहाँ साइकिल जा सकती है, ये पीले रंग की ये बस के रूट है जहाँ सरकारी बस चलती है, वो कौन सा रास्ता लेती है, वो ये पीले रंग की लाइन है. तो इससे हमने ये पता लगाया कि कौन से ऐसे इलाके हैं इस शहर में जो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, इंसानी आबादी के लिए सबसे उपयुक्त हैं. तो ये जो हल्के हरे रंग, हल्के रेडिश ब्राउन कलर के जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, दीज आर द साइट्स दैट आर परफेक्ट फॉर ए ह्यूमन लोकेशन. तो इंसानों के रहने के लिए ये परफेक्ट मोहल्ले हैं, ये सर्कल्स आपको दिख रहे हैं. तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन मैप से, पार्क की लोकेशन से यहाँ, और हमने पता लगाया कि रहने के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त जगह है शहर में. उसी तरह से इसी मैप के द्वारा हम ये भी पता लगा सकते थे कि लैंडफिल साइट के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त जगह होगी शहर में. तो बस यही है. Let me explain the same thing in English. So this is a transportation map for the city of Manhattan, Kansas. And from this transportation map, we know where major roads are using the red line, then the bus routes with the yellow line, and the bike lanes with the green line. So all of this using this map. And this map has transportation map plus the location of parks in it. You can see the dark greenish, blackish polygons. These are location of parks. Based on the location of parks, transportation routes, it has been decided that which sites are the best for human settlements. I'm sorry, this is not a map for landfill site because I couldn't create one, but I had made a map for the suitability of living for human settlements. And based on the location of parks and transportation routes, these light brownish pinkish circles denote
which sites are best suited for human settlements or for living in the city of Manhattan. So just like I made a map for suitability of living in the city of Manhattan, there could have been a map for the suitability of site selection for landfill sites, but I didn't have the data for it, so I couldn't do it. Okay. Now, very specific criteria for site selection. I know that all students want notes, something to jot down, something to memorize for the net exams, for their class exams. So here it is, your favorite slide. The landfill site must not be located within 160 meter of a wetland. Wetlands are sites with like marshes and wetlands which have very high water table. Daldali zameen, it has a high water table, and sometimes it is like small ponds and lakes are located. Those are wetlands. So it should not be near small ponds or lakes or areas with a very high water table. Okay. The landfill sites must not be located within 160 meter of a sensitive area. This I explained previously in this lecture, that it should not be near a sensitive area. Sensitive areas are areas where rare, threatened, or endangered species live, like a sensitive habitat. It should not be near a sensitive habitat or a sanctuary or a national park. Okay. The landfill site must not be located within 200 meters of an existing waste site. So it should not be located within 200 meters of another landfill. I would suggest you please verify this fact. The landfill site must not be located within 1000 meters of a human settlement. 1000 meters, that is 1 kilometer. So it should not be located within 1 kilometer of a human settlement. The landfill site must be located within 300 meters of an existing major road. So I told you earlier in this lecture that having a major road is very important for the dump trucks to come and go on and off the landfill site. So it should be located within 300 meters of an existing major road. The landfill site, and not a minor road, it's a major road. The landfill site must not be located within a critical habitat. Within a critical habitat. So wherever there is a critical habitat, a habitat where rare, threatened, and endangered species live, or a habitat which is under the threat of habitat loss, it should not be located within that habitat or near that habitat, both criteria. The landfill site must not be located within 3048 meters, that is 10,000 feet of an airport. For reasons I mentioned earlier in this lecture, that landfill site should not be located near an airport. The landfill site must not be located on or within 500 meters of sites of historic importance. This is also true. Sites of historic importance could be Lal Killa, could be India Gate, could be Gateway of India, could be the Gol Ghar in Patna. So any site of historic or tourist importance the landfill site should not be located within half a kilometer of such sites. हिंदी में यही बात कह दूं, आप सबको कुछ भी नोट डाउन करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने खास तौर से ये स्लाइड बनाई है, आपके यूजीसी नेट एग्जाम्स के काम में आएगी, कि लैंडफिल साइट को 160 मीटर पास नहीं होना चाहिए किसी वेटलैंड के। वेटलैंड होता है किसी नदी, तालाब, झील या कोई दलदली जमीन जिसका वाटर टेबल बहुत हाई होता है, वो सारे वेटलैंड्स में आते हैं। उसके 160 मीटर के रेंज में लैंडफिल साइट को नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैंडफिल्स कभी भी हाई वाटर टेबल की साइट के आसपास नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया क्यों नहीं होना चाहिए। The landfill site must not be located within 160 meters of a sensitive area. कोई भी sensitive area या sensitive habitat जहाँ rare, threatened या endangered species रहती हैं, वहां भी नहीं होना चाहिए। उसके आसपास भी, उसके 160 मीटर के आसपास नहीं होना चाहिए। The landfill site must not be located within 200 meters of an existing waste site. और किसी एग्जिस्टिंग वेस्ट साइट या एग्जिस्टिंग लैंडफिल साइट की 200 मीटर के अंदर भी नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप फिर से वेरीफाई कर लें। जहां से मैंने ये नोट डाउन किया है वो सोर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप वेरीफाई कर सके या आप किसी और सोर्स से वेरीफाई कर सके। और जो भी बातें मैं अपने किसी भी लेक्चर में कहती हूँ, अगर किसी को भी कोई डाउट या शक है या लगता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया, तो उसके ऊपर भी आप कमेंट्स में डाउट्स रेज कर सकते हैं, और मैं उसको हमेशा वेलकम करती हूँ, क्योंकि मैं भी आपके साथ सीख रही हूँ। तो अगर मैंने कभी कुछ गलती से कुछ गलत बता दिया तो प्लीज मुझे बताएं। The landfill site must not be located within 1000 meters of a human settlement. और किसी भी इंसानी बस्ती या आबादी के 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कारण पहले से पता है आपको कि लैंडफिल साइट से बदबू निकलती है, तो ह्यूमन सेटलमेंट आसपास होगा तो उनको दिक्कत होगी, तो वहां नहीं होना चाहिए। The landfill site must not be located within 300 meters, must be located within 300 meters of an existing major road. और लैंडफिल साइट किसी मेजर रोड के 300 मीटर के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि डंप ट्रक बहुत भारी होते हैं और उनको चलने के लिए, आसानी से आने जाने के लिए तो उसको मेजर रोड की जरूरत होती है। तो जो लैंडफिल साइट है वो मेजर रोड के 300 मीटर के अंदर होना चाहिए। द लैंडफिल साइट मस्ट नॉट बी लोकेटेड विद इन अ क्रिटिकल हैबिटेट। और क्रिटिकल हैबिटेट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, रेयर, थ्रेटेंड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज
होते हैं जहां होते हैं, या वो हैबिटेट जो हैबिटेट लॉस के थ्रेट में है कि उसको हैबिटेट उसका जो मेजर एरिया है ऑलरेडी लूज कर चुका है वो हैबिटेट, तो ऐसी जगहों पर या ऐसी जगहों के आसपास लैंडफिल साइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैंडफिल साइट पॉल्यूशन का सोर्स होता है, तो वो खतरा कर सकता है। द लैंडफिल साइट मस्ट नॉट बी लोकेटेड विद इन 3048 मीटर, दैट इज 10,000 फीट ऑफ एन एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट के आसपास भी लैंडफिल साइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि चील गिद्ध वगैरह लैंडफिल साइट पे मंडराते हैं, और यही चिड़ियां जब हवाई जहाज से टकराती हैं तो क्रैश का खतरा रहता है। द लैंडफिल साइट मस्ट नॉट बी लोकेटेड विद इन on or within 500 meters of sites of historic importance। तो हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस के साइट्स क्या होती हैं? लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, गोलघर हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, ये सब जो साइट्स हैं, जो ऐतिहासिक स्थल हैं, इनके आधा किलोमीटर के तक लैंडफिल साइट नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक करें। और आशा है कि जो मैंने आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, जीआईएस के बारे में बताया, वो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। मुझे आई वेलकम ऑल कमेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स or you didn't understand anything, please do let me know in the comments below. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, and I'll see you again with a new lecture on raw water treatment. So please stay tuned. Thank you.